Hello students, this is Bhashwati teacher. Welcome to my channel Learning English with Bhashwati teacher, and today we are going to start lesson number 4.2, The Luncheon. So come, let's get started. The Luncheon is written by William Somerset Maugham. From 1874 to 1965 this person lived. He was a distinguished British playwright, novelist and short story writer. He was among the most popular writers of his era and reputedly the highest paid author during the 1930s. His work is characterized by a clear, unadorned style, cosmopolitan settings and a shrewd understanding of human nature. मतलब इंसान कितना धूर्त हो सकता है ये वो अपने लिखे हुए स्टोरीज से बताते थे. A most delightfully humorous narrative, The Luncheon, is a slice of life story about Maugham's luncheon date proposed to him by a woman whom he hopes is a supporter of his art. तो ये जो लंचियन है ये एक लंच का डेट है जिसमें वो अपने एक फ्रेंड के साथ जाता है और उसको समझ में आता है फिर कि इंसान कितना धूर्त हो सकता है. ओके, सो कम लेट्स गेट स्टार्टेड. आई कॉट साइट ऑफ हर एट द प्ले in the I caught sight of her at the play and in answer to her call. I went over during the interval and sat down beside her. It was long since I had last seen her, and if someone had not mentioned her name, I hardly think I would have recognized her. She had addressed me brightly. Well, it's many years since we first met. How does time fly? We are none of us getting any younger. Do you remember the first time I saw you? You asked me to luncheon. Did I remember? It was 20 years ago and I was living in Paris. I had a tiny apartment and I was earning barely enough money. She had read a book of mine and had written to me about it. I answered, thanking her, and presently I received from her another letter saying she was passing through Paris and would like to have a chat with me. तो हमारे राइटर लिखते हैं कि मैं उस लेडी से मिला एक प्ले में. उस ज़माने में देखो 1930s में फिल्में नहीं होती थी तो सिनेमा हॉल नहीं होते थे. तब ड्रामा शोज़ होते थे, नाटक कंपनियां होती थी. तो वो नाटक कंपनियां रोज़ शाम को वो अपने स्टेज के ऊपर प्ले ड्रामा करते थे. तो यहाँ पे वो प्ले देखने के लिए वो भी गई थी, ये भी गया था और यहाँ पे उसकी नज़र पड़ी उसके ऊपर. एंड इन आंसर टू हर कॉल वो लेडी ने कॉल किया तो उसने भी उसका ध्यान गया. फिर उसके बाद इंटरवल में वो उसके पास गया, लेडी के पास गया और उसके बाजू में जाकर बैठ गया. काफ़ी लंबा समय हो गया था जब उससे मिले हुए, और अगर किसी ने उसका नाम नहीं बताया होता तो शायद उसको वो पहचान भी नहीं पाता. तो और उसने बहुत अच्छे से बात की, वो लेडी ने बहुत अच्छे से बात की हमारे ऑथर के साथ. तो फिर वो बोलती है कि देखो कितने साल हो गए हम लोग पहली बार जब मिले थे, टाइम कैसे चला जाता है, बीत जाता है. एंड हम लोग दिन ब दिन हमारी उम्र कुछ कम नहीं हो रही है. क्या तुम्हें याद है पहली बार जब हम मिले थे तुमने मुझे कहा था कि चलो लंचियन पे जाएंगे, लंच करने जाएंगे. तो राइटर सोचता है कि हाँ क्या सच्ची में मुझे याद है, मुझे तो याद भी नहीं. 20 साल पहले जब मैं पेरिस में रहता था, मेरा एक टाइनी सा अपार्टमेंट था, मैं हार्डली इतना कमाता था, बहुत कम पैसे कमाता था. उसने मेरी एक किताब पढ़ी हुई थी और उसने मुझे चिट्ठी लिखी थी उसके बारे में और मैंने उसका रिप्लाई किया था थैंक यू बोलते हुए. और उसके बाद अब मुझे रिसेंटली उससे एक चिट्ठी मिली और कहा था कि उसमें वो कह रही है कि अब वो पेरिस में आ रही है 2-3 दिन के लिए, तो वो मुझसे मिलना चाहेगी, मेरे साथ बात करना चाहेगी. बट हर टाइम वॉज लिमिटेड and the only free moment she had was on the following Thursday, and would I give her a little luncheon at Foyot's afterwards. Foyot's is a restaurant and it was so far beyond my means that I had never even thought of going there. I had 80 francs, gold francs, to last me the rest of the month, and a modest luncheon should not cost more than 15. If I cut out coffee for the next 2 weeks, I could manage well enough. I answered that I would meet my friend at Foyot's on Thursday at 12:30. She was in appearance imposing rather than attractive, and she gave me the impression of having more teeth, white and large and even, than were necessary for any practical purpose. लेकिन अब वो जो लेडी पेरिस में आई थी तो वो बोली कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है और सिर्फ मेरे पास अगर टाइम है तो ये अगले थर्सडे को है और लंच पे मैं तुमको मिल सकती हूँ. तो फोयॉट्स नाम का एक रेस्टोरेंट है, जैसे नागपुर में तुली इम्पेरियल है या सेंटर पॉइंट होटल है, रेडिसन ब्लू है, तो वैसे फोयॉट्स एक हाई फाई रेस्टोरेंट है. तो फोयॉट्स में मैं तुमको लंच के लिए मिल सकती हूँ.
फोयॉट्स एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो हमारे ऑथर के मीन्स के बियॉन्ड है। मीन्स के बियॉन्ड मतलब कि इसके हैसियत के बाहर है। एंड उसने कभी सोचा भी नहीं कि मैं वहाँ पे जाके खाऊंगा। जैसे ऑल ऑफ यू नो, रेडिसन ब्लू में वन डिनर विल कॉस्ट 1400 रुपीज़। तो कौन जाएगा 1400 रुपये में खाना खाने के लिए, एक टाइम का खाना। सो इन दैट सेंस ऑथर ने कभी नहीं सोचा, लेकिन उसने सोचा कि ओके ये फोयॉट्स है, मेरे पास अभी सिर्फ 80 फ्रैंक्स बचे हुए हैं, तो मुझे पूरा महीना उसमें निकालना है। और अगर मैं मॉडेस्ट मतलब सबसे सिंपल अगर लंचियन करूँगा तो फिर भी मुझे 15 फ्रैंक से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। तो अगर मैं कॉफ़ी पे सेक्रीफाइस कर लूँ अगले 2 हफ्ते के लिए, तो फिर मैं इतने पैसों में अपना गुजारा कर सकता हूँ। अब मैंने सोचा, मैंने उसको जवाब दिया मेरी फ्रेंड को कि कहा ठीक है, मैं थर्सडे को दोपहर को 12:30 बजे फोयॉट्स रेस्टोरेंट में तुमको मिलूँगा। तो वो अपीयरेंस में वो जो लेडी थी वो बहुत ही इम्पोजिंग थी। अट्रैक्टिव अलग बात होती है, इम्पोजिंग मतलब बहुत ज़्यादा ठाट बाट दिखाने वाली लेडी थी। और ऐसा लग रहा था कि वो अपने जितने दांत हैं उससे ज़्यादा दांत दिखा रही है, जो कि वाइट और लार्ज हैं, और जितने प्रैक्टिकल पर्पस के लिए जितने ज़रूरी है उससे ज़्यादा ही वो दांत दिखा रही है। Then she was talkative, but since she seemed to want to talk about me, I was prepared to be an attentive listener. I was startled when the menu was brought, for the prices were a great deal higher than I had thought. But she reassured me. I never eat anything for luncheon, she said. Oh, don't say that, I answered generously. I never eat more than one thing. I think people eat far too much nowadays. A little fish, perhaps. I wonder if they have any salmon. Well, it was early in the year for salmon and it was not on the menu, but I asked the waiter if there was any. Yes, a beautiful salmon had just come in. It was the first they had had. I ordered it for my guest. The waiter asked her if she would have something while it was being cooked. So, no, she answered. I never eat more than one thing. Unless you have a little caviar. I never mind caviar. ठीक है। तो वो लेडी जो थी वो बहुत टॉकेटिव बड़बड़ करने वाली लेडी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था वो मेरे ही बारे में बात कर रही है, मेरी ही तारीफ़ कर रही है, तो मैं एक अटेंटिव लिसनर की तरह सुन रहा था। मैं जब एकदम मैं स्टार्टल मतलब कि मैं शॉक्ड हो गया जब मेनू लाया गया, क्योंकि चीज़ें इतनी कॉस्टली थी उसमें जो मैंने सोची भी नहीं थी। लेकिन उसने मुझे रीएश्योर किया कि मैं तो लंचन में कुछ भी नहीं खाती। तो मैंने उसको भी जनरसली बोला, नहीं नहीं ऐसा मत कहिए, कुछ ना खाना ही पड़ेगा। ने वो बोलती है, नहीं आई डोंट ईट मोर देन वन थिंग, एक चीज़ से ज़्यादा मैं कभी भी नहीं खाती। आजकल लोग तो बहुत ज़्यादा खाते हैं। वो सोचती है, वो बोलती है कि लिटिल फिश, थोड़ी सी मछली ले आना, अगर सैमन मछली मिले तो अब वो साल की शुरुआत थी, सैमन मछली का सीज़न नहीं था और वो मेन्यू में भी नहीं था। लेकिन वेटर को जब पूछा गया तो उसने कहा कि हाँ, एक ब्यूटीफुल सैमन मछली आज ही आई है। एंड तो उसने कहा कि एंड ये पहली मछली आई है इस सीज़न की। तो फिर वो मैंने सैमन मछली मेरे गेस्ट के लिए ऑर्डर किया। तो वेटर ने पूछा कि और जब तक वो सैमन मछली को पकाया जा रहा है, क्या मैडम आप कुछ और खाना चाहेंगी? तो वो बोलती है कि नो, मैं कुछ नहीं खाती और मैं एक चीज़ से ज़्यादा कभी नहीं खाती। आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग। हाँ, सिर्फ आपके पास अगर कैवियर है तो आई नेवर माइंड कैवियर। डू यू नो कैवियर क्या होता है? कैवियर इज़ समथिंग विच इज़ वेरी कॉस्टली एंड इन ऑल द 7 स्टार होटल्स वगैरह ओनली यू विल गेट इट। वो बोल रही है कि आई डोंट ईट एनीथिंग, लेकिन अभी वो सैमन मछली कुक होते होते वो कैवियर खाना चाहती है। तो I knew I could not afford caviar, but I could not very well tell her that. For myself, I chose the cheapest dish on the menu, and that was a mutton chop. I think you are unwise to eat meat, she said. I don't believe in overloading my stomach. She ate the caviar and she ate the salmon. She talked gaily of art and literature and music, but I wondered what the bill would come to. When my mutton chop arrived, she took me quite seriously to task. I see that you are in the habit of eating a heavy luncheon. I'm sure it's a mistake. Why don't you follow my example that just eat one thing? I couldn't possibly eat anything more unless they had some of those giant asparagus. I should be sorry to leave Paris without having some of them. My heart sank. I had seen them in the shops and I knew that they were horribly expensive. My mouth had often watered at the sight of them. I am not in the least hungry, my guest sighed. But if you insist, I don't mind having some asparagus. I ordered them. Aren't you going to have any? No, I never eat asparagus.
तो अब वो कैवियर बोलती है कि हाँ अगर कैवियर है तो थोड़ा सा ले आई है। तो राइटर मनी मन सोचता है कि कैवियर इतना कॉस्टली है, मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो लेकिन मैं अपनी गेस्ट को बता भी नहीं सकता था कि मेरे पास इतने ही पैसे हैं। तो उसने खुद के लिए क्या किया, मेनू में जो सबसे चीप वाला डिश था मटन चॉप, वो खुद के लिए ऑर्डर किया। उसके ऊपर वो लेडी बोलती है, तुम मीट खाते हो, ये बहुत ही अनवाइज है। हाँ, एंड मैं तो कभी भी अपने स्टमक को ओवरलोड नहीं करती। फिर वो कैवियर खाती है अच्छे से, वो सैमन खाती है अच्छे से, सैमन मछली खाती है अच्छे से, और वो खुशी खुशी आर्ट और लिटरेचर और म्यूज़िक के बारे में बात करते करते ठूसे जा रही है, खाई जा रही है, खाई जा रही है। फिर मैं सोच रहा था यार बिल कितना आएगा। फिर जब मेरा मटन चॉप आया तो उसने मुझे सीरियसली मुझे बात सुनाई। उसने कहा कि मुझे लगता है तुम बहुत ज़्यादा हेवी लंचियन खाते हो और ये एक मिस्टेक है। तुम मेरा एग्जाम्पल क्यों फॉलो नहीं करते? मैं तो सिर्फ एक चीज़ खाती हूँ और मैं तो एक से ज़्यादा दूसरी चीज़ खा ही नहीं सकती। हाँ, अगर इन लोगों के पास जायंट एस्पैरागस है तो सोचूंगी। अगर मैं पेरिस जायंट एस्पैरागस खाए बिना ही चली जाऊँ तो मुझे कितना बुरा लगेगा, है ना। तो राइटर का दिल एकदम इट सैंक, हार्ट सैंक, मतलब उसका दिल अभी ये कर रहा था, चिंता हो रही थी उसको। उसने जायंट एस्पैरागस दुकानों में देखे थे और उसको पता था कि ये हॉरिबली एक्सपेंसिव चीज़ें हैं और उनको देखकर इसके मुंह में पानी भी आता था। लेकिन वो एक्सपेंसिव होता था तो वो ख़रीदता नहीं था। तो वो गेस्ट बोलती है, मैं तो बिल्कुल हंग्री नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम इंसिस्ट करोगे तो मैं तो थोड़ा एस्पैरागस खा सकती हूँ। तो क्या तुम नहीं खाओगे थोड़ा सा एस्पैरागस? नो, आई नेवर ईट एस्पैरागस। राइटर बोलता है, मैं नहीं खाता एस्पैरागस। We waited for the asparagus to be cooked. Panic seized me. It was not a. अच्छा, I'm making part 2 of the video. Huh? This video is becoming very long.